Hey guys, welcome to the channel Chemistry Wale Jaja, and today we will have the fourth session for the mole concept, and in this session we are going to cover the concepts of percent composition, empirical formula and molecular formula. So let's start. So percentage composition, it provides information regarding the percentage of a particular element present in a compound. बहुत ही सरल शब्दों में इसे यदि हम कहें तो हमें पता चलेगा कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का कितना परसेंट बाय मास प्रेजेंट है. सो मास और मास परसेंटेज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. परसेंटेज कैलकुलेशन आप सभी ने क्लास 6, 7, 8 में खूब पढ़ी है. सो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज. मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड divided by molar mass of the compound multiplied by 100, right? So this is how you calculate percentage, numerator by denominator into 100. So we will just follow this same formula, same concept. So percentage composition, for example, let's try to find percentage composition of elements in water. So water molecule is H2O. It is made up of two elements, hydrogen and oxygen. So molar mass of water, if it's given, then 18.02 grams per mole, and otherwise if it's not provided, then you know one H atom has a mass of 1 U, therefore two H atoms will have combined total mass of 2 U. One oxygen atom has a mass of 16 U, right? So in this case molecular mass of water will be 2 times hydrogen, so that will be 2 U, plus one oxygen atom, that will be 16 U. So that gives you molecular mass of water as 18 U, and or you can say that it's 18 grams per mole. Now mass percentage of hydrogen. So how will you calculate it? So there are two hydrogen atoms. So total mass of hydrogen atoms will be 2 times 1.008 divided by total mass of water, that is 18.02, and when you perform this calculation, so 2 times 1.008 divided by 18.02 and multiply this by 100 to convert it into percentage. So that gives you 11.18%. So it means one water molecule has 11.18% hydrogen by mass in it. Mass percentage of oxygen. Okay. Now if you have only two elements, in this case we have only two elements, hydrogen and oxygen, and you know the percentage of one element, you already calculated that. So and you also know that total percentage adds up to 100. So in this case the mass percentage of oxygen should be, I mean if you are sitting in some entrance and right there you don't need to calculate everything. So if you know the percentage composition of one element, the second will be 100 minus this. But we are not at that stage yet. So in this case let's calculate it just like we did it for hydrogen. So mass percentage of oxygen is equal to, now mass of oxygen is 16 units divided by molecular mass of water, that is 18.02, and to convert it into percentage you multiply it by 100. So that is your 88.79. So it means one water molecule has 11.18% hydrogen and 88.79% oxygen by mass in it. Let's go through one more example. So percentage composition of ethanol. Ethanol is an alcohol and its molecular formula is C2H5OH. So it means कि एक इथेनॉल मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम्स हैं, 5 हाइड्रोजन एटम्स हैं, सॉरी 6, 5 + 1 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम है. एंड मोलर मास ऑफ इथेनॉल, so mass of one carbon atom is 12.01, so mass of 2 carbon atoms will be 2 times 12.01. Similarly mass of one hydrogen atom is 1.006 and you have 5 + 1 6 hydrogen atoms, so their total mass will be 6 times 1.008, and there is only one oxygen atom which mass is 16. So total molecular mass of ethanol comes out to be, you just add these up, so that will be 46.068 grams per mole. Now mass percentage of carbon, तो इथेनॉल का टोटल मास हमारे पास जो है वो है 46.068, उसमें कार्बन कितना है, कार्बन इज 2 times
12.01। क्यों? क्योंकि कार्बन के 2 एटम्स हैं, कार्बन के एक एटम का मास है 12.01, तो 2 का मास हो जाएगा 24.02। सो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी मास ऑफ कार्बन divided by molecular mass of ethanol, and to convert it into percentage you multiply that by 100. So that comes out to be 52.14%. मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हमारे पास 6 एटम्स हैं, एक एटम का मास है 1.008, तो टोटल हाइड्रोजन के 6 एटम्स का मास हो गया 6 टाइम्स 1.008, दैट इज 6.048. डिवाइड दैट बाय total mass of the molecule, ethanol molecule, which is 46.068, and to convert it into percentage you multiply it by 100. So that comes out to be 13.13%. And mass percentage of oxygen, oxygen का एक ही एटम आपके पास है जिसका मास है 16 यूनिट, डिवाइड दैट बाय टोटल मास ऑफ द ethanol molecule, that is 46.068, and to convert it into percentage you multiply that by 100, and you get 34.73%. And just to double check, in the total percentage of all these elements should be around 100. Sometimes due to this rounding of numbers in your calculations, it may not be exactly 100, but it should be something around it. एक आधे और इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट. नाउ सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हुआ Na2SO4. इसका मतलब इसमें 2 सोडियम के एटम्स है, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है. हमें पता है मोलिकुलर मास टोटल कितना हो जाएगा, 2 सोडियम के एटम्स हैं तो 2 टाइम्स इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. 1 सल्फर का एटम है, ओके वो ऐड कर दो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ओके वो भी ऐड कर दो 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. सो 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, and atomic mass of oxygen is 16. So 2 times 23 plus 1 times 32 plus 4 times 16, and this gives you 142 U or 142 grams per mole as the molecular mass of sodium sulfate. तो जिस किसी भी आपके मोलिक्यूल में परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, सबसे पहले आप उसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से, बाय एडिंग अप द टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स इन यू और ग्राम्स पर मोल. और ये जो आपको नंबर मिलेगा ये आपकी कैलकुलेशंस में डिनोमिनेटर का काम करेगा. अब एक एक एलिमेंट पे चलते हैं. तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का हमने क्या पढ़ा था पीछे फॉर्मूला, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ए कंपाउंड टाइम्स 100 बाय मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड. 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करें. मास परसेंटेज ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, तो सोडियम का टोटल मास कितना था हमारे पास, 2 टाइम्स 23 दैट इज 46, डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100. सो 46 कहाँ से आया, क्योंकि सोडियम के 2 एटम्स हैं, उनका टोटल मास है 2 टाइम्स 23. 142 कहाँ से आया, ऊपर हमने सोडियम सल्फेट के मॉलिक्यूल का टोटल मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया. तो परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की, मास ऑफ दैट एलिमेंट, इन दिस केस दैट एलिमेंट इज सोडियम 46, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड 142, एंड टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन यू मल्टीप्लाई दिस बाय 100. So to convert it into percentage, sorry, you multiply that by 100, so you get 32.39% in this case. Similarly, mass percentage of sulfur, that is sulfur का एक ही एटम है, उसका मास है 32, so 32 by 142 into 100. And last, mass percentage of oxygen, so oxygen के 4 एटम्स है, एक एटम का मास था 16, तो 4 एटम्स का मास हो गया 4 times 16 that is 64, divided by molecular mass that is 142 into 100 that is 45.07%. राइट, गुड सो फार. अब इस परसेंटेज कंपोजिशन की हम आगे एप्लीकेशंस देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड के हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूलाज और मोलिकुलर फार्मूलाज कैलकुलेट करते हैं. एक और छोटा सा क्वेश्चन है, आई मीन नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू परसेंटेज कंपोजिशन, बट या वी कैन फिट इट हियर. सो हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट. तो कॉपर सल्फेट का अब के जो कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम्स हैं, कॉपर, सल्फर एंड ऑक्सीजन. एटॉमिक मास कॉपर का 63.5, सल्फर के एक एटम का मास 32U, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U. तो टोटल मोलिकुलर मास सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, राइट. सो दैट विल बी मास ऑफ कॉपर एटम प्लस 1 सल्फर एटम प्लस 4 ऑक्सीजन एटम्स. तो
दैट कम्स आउट टू बी 159.5 ग्राम्स पर मोल। अब इसका मतलब ये कि यदि आप 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे तो उसमें कॉपर आपको मिलेगा 63.5 ग्राम्स। यूनिटरी मेथड लगा दो सीधा सीधा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट मोलिकुलर मास से निकल के आ रहा है नंबर। इससे आपको कितना कॉपर मिलेगा? 63.5 ग्राम्स। क्यों? क्योंकि उसके फॉर्मूले में एक ही कॉपर एटम है जिसका एटॉमिक मास है 63.5 यू या 63.5 ग्राम्स पर मोल। तो यूनिटरी मेथड में 159 से इतना आ रहा है, तो 1 ग्राम से कितना आएगा? राइट, 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5। और आपको कैलकुलेट कितने का करना है? 100 ग्राम से। तो 100 ग्राम से आपको मिलेगा, एक की वैल्यू आपको पता है 100 की निकालनी है, मल्टीप्लाई दैट बाय 100। ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन अगेन टू just to wind it up, tells you the percentage of a component atom in a compound. So molecular formula represents the actual number of atoms of elements in a molecule. किसी molecule में किसी element के कितने एक्चुअल में सच में कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट है, ये बात आपको मोलिकुलर फॉर्मूला से पता चलती है। एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। वो एक्चुअल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में वो रेशियो इस तरह की आएगी कि एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला सेम हो जाएगा, और कुछ केसेस में वो डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज आप सभी जानते हैं, तो ग्लूकोज इज C6H12O6, ये इसका मोलिकुलर फार्मूला। इससे पता चलता है कि ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड 6 ऑक्सीजन एटम है। So one glucose molecule has 6 carbon atoms, 12 H atoms and 6 O atoms. लेकिन रेशो इनकी यदि आप देखें, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की, तो कार्बन के 6 एटम्स थे, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है इसमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट विल बी 6. So 6 is the largest number that completely divides all three of them. So in this case the simplest ratio कैसे निकालेंगे आप? जो भी उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो, जो बड़े से बड़ा नंबर इन सबको डिवाइड कर दे, उससे आप इसको रेशियो को डिवाइड करें, तो सिंपलेस्ट रेशियो विल बी इन दिस केस 1:2:1. So the actual number of atoms is 6:12:6, but the simplest ratio is 1:2:1. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम. सो एम्पिरिकल फॉर्मूला विच टेल्स यू द simplest whole number ratio of atoms of elements in a molecule. So in this case for glucose, this empirical formula will be CH2O. Why? Because the simplest ratio of constituent atoms in glucose molecule is 1:2:1, and the actual number of atoms is 6 of carbon, 12 of hydrogen and 6 of oxygen. So molecular formula will be C6H12O6, but empirical formula will be CH2O. मोलिकुलर फार्मूला से आपको पता चलेगा कि एक मोलिक्यूल में एक्चुअल कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के, और एम्पिरिकल फार्मूला से आपको पता चलेगा कि हर एक एलिमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है. अब मोलिकुलर फार्मूला यदि आपको पता है तो आप मोलिकुलर फार्मूला मास निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल, जो अभी तक हम निकालते आए हैं. राइट, हमने वाटर का निकाल के देखा, कार्बन डाइऑक्साइड, पीछे वाले क्वेश्चन में सोडियम सल्फेट, इथेनॉल एक्सेट्रा का. तो ग्लूकोज का भी ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे? 6 कार्बन एटम्स हैं तो 6 × 12. वाई 12? बिकॉज मास ऑफ वन कार्बन एटम इज 12 यूनिट्स. 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 12 × 1 बिकॉज मास ऑफ 1 H एटम इज 1 U. एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 6 × 16. वाई? बिकॉज मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज 16. तो ये आप इन सबको ऐड करेंगे तो यू गेट 180 U और 180 ग्राम्स पर मोल. दैट इज मोलिकुलर फार्मूला मास ऑफ ग्लूकोज. और एम्पिरिकल फार्मूला मास यदि निकालना हो तो एम्पिरिकल फार्मूला में जो एटम्स हैं उतने एटम्स को उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करें और ऐड करते जस्ट लाइक हियर. सो इन दिस केस एम्पिरिकल फार्मूला में तो कार्बन का एक ही एटम है तो 1 × 12, हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं तो 2 × 1, ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो 1 × 16. ठीक, तो when you add this up that gives you 13 U or 13 grams per mole.
तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो टोटल मास निकल के आए वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है, मोलिकुलर फॉर्मूला से जो मास निकल के आए वो मोलिकुलर फॉर्मूला मास है। और क्या इन दोनों मासेस में कोई रिलेशन है? हाँ, हम एक फैक्टर की हम बात करेंगे जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। In this case, molecular formula mass was 180, empirical formula mass is 30. So when you divide 180 by 30, you get 6, right? And this 6 is again that HCF that you used to convert molecular formula to empirical formula. इस बात को याद रखिएगा, आगे जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला यदि आपको पता है, मोलिकुलर फॉर्मूला यदि आपको फाइंड आउट करना हो तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द मोलिकुलर फॉर्मूला। सो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला टाइम्स n। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत अच्छे और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी के लिए एक बार जस्ट इसको इस पर एक निगाह डाल लीजिए, इसको याद भी करने की जरूरत नहीं है। सो फार सो गुड। सो लेट्स मूव हाउ टू solve numerical problems based on these concepts. So determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass. तो आयरन का कोई ऑक्साइड है जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन आपको यहाँ पर गिवन है। आप समझ में आया कि ये टॉपिक मोलिकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन क्यों साथ डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पर। कि यदि आपको परसेंटेज कंपोजिशन पता है तो आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हो। एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता है, और यदि वो n, ये पीछे वाला, ये वाला n आपको पता है, जो विच वाज द रेशियो ऑफ मोलिकुलर फार्मूला मास टू एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो रेड हाईलाइटेड फार्मूला का यूज़ करके एम्पिरिकल फार्मूला टाइम्स n आप मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि एक टेबल आप इस तरह की बनाएं। इस टेबल में सीरियल नंबर just to write, right, this is first element, second, third, etc. just to track the number of elements. अदरवाइज असली काम यहाँ पर शुरू हो रहा है। एलिमेंट कौन कौन से आपको गिवन है यहाँ पर? आयरन का सिंबल आप लोग जानते हैं Fe। डाईऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आपको मालूम है सिंबल होता है O। ओके जी, तो आप एलिमेंट्स लिखें, फिर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लिखें। आयरन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 56 U, एक एटम की बात करें तो 56 U, और एक मोल की बात करें तो 56 ग्राम्स पर मोल। इसी तरह ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 16 U। ठीक है जी, तो क्या करना है आपको एलिमेंट्स लिखने हैं कि जो कंपाउंड आपको प्रोवाइडेड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप उनके एटॉमिक मासेस लिखेंगे। थर्ड, परसेंटेज बाय मास या वेट जो भी प्रोवाइडेड है। तो परसेंटेज बाय मास आयरन की थी यहाँ पर 69.9%, ऑक्सीजन का गिवन है 30.1%। और यदि कोई आपके पास बाइनरी कंपाउंड है जिसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, तो हो सकता है आपको बहुत बार एक ही एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन है, तो दूसरे का कैसे पता चलेगा? 100 माइनस, राइट, 100 माइनस इन दिस केस 69.9, दैट विल गिव यू 30.1%। अब इस परसेंटेज बाय मास से हमें पता क्या चले, इससे हमें पता चले कि आपके पास 100 ग्राम है, सपोज यू हैव 100 ग्राम्स ऑफ दिस कंपाउंड, तो उसमें 69.9 ग्राम आयरन होगा और 30.1 ग्राम उसमें ऑक्सीजन होगा। बस यही हमारी बात बन गई। अब आपको एटॉमिक मास भी पता है, आपको उसका गिवन मास भी पता है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते थे? गिवन वेट बाय एलिमेंट के केस में एटॉमिक मास, या कोई कंपाउंड वगैरह तो उसका मोलिकुलर मास, राइट। तो यहाँ पर एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन वेट बाय एटॉमिक मास। गिवन वेट कहाँ से लेके आ रहे हो? परसेंटेज कंपोजिशन से। एटॉमिक मास इधर आपके पास इस कॉलम में है ही, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? मतलब 100 ग्राम आप इस कंपाउंड का लेते हैं तो उसमें आयरन के कितने मोल्स होंगे? गिवन मास ऑफ आयरन 69.9 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन दैट इज 56। व्हेन यू सोल्व इट, यू डिवाइडेड, यू गेट 1.248। ऐसे ही ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय एटॉमिक मास, so given weight is 30.1 divided by atomic mass is 16, so that number of moles comes out to be 1.88। ठीक है, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब इन नंबर ऑफ मोल्स की सिंपलेस्ट रेशो निकालनी है। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालोगे? जो भी इनमें से सबसे छोटा नंबर हो,
सो 1.248 एंड 1.88, तो इनमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है 1.248। इससे इन दोनों को ही डिवाइड कर दो, एक बार एक को एक बार दूसरे को। सो फॉर एग्जांपल 1.248 इसको अपने आप से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1। ये सिमिलरली 1.88 इसको भी जब आप ऊपर वाले इस नंबर 1.248 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1.5। तो ये अपने को सिंपलेस्ट इनकी जो रेशियो मिली दैट इज 1.1:1.5। अब यदि आपको याद हो तो एटम्स जो हैं वो आधे अधूरे कंबाइन नहीं करते। ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा एटम ऑक्सीजन का कंबाइन कर जाएगा, 3/4 एटम ऑक्सीजन का कंबाइन कर जाएगा आयरन के 1.5 एटम के साथ या एनीथिंग लाइक दैट। सो एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन होल नंबर्स, एक एटम या 2 एटम या 3 एटम या 4 एटम, राइट। वो कभी फ्रैक्शंस में कंबाइन नहीं करते। तो ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, सॉरी सिंपलेस्ट रेशियो है, इसको हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। क्या करें, हम इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, फ्रैक्शन से होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए। और आपको ऐसे छोटा से छोटा नंबर ढूंढना है, स्मॉलेस्ट सच नंबर। तो इन दिस केस स्मॉलेस्ट सच नंबर इज 2। 2 से यदि आप 1.5 को मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स 3, राइट। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिससे आप 1.5 को मल्टीप्लाई करें तो किसी होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो 6 हो जाता, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो 9 हो जाता। बट हमें सिंपलेस्ट सच रेशो चाहिए। सिंपलेस्ट रेशो के लिए आपको ऐसा वो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना पड़ेगा, वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे आप 1.5 को मल्टीप्लाई करें तो वो एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। एंड स्मॉलेस्ट सच नंबर इज 2। अब इक्वेशंस का आपको कंसेप्ट पता ही है कि किसी एक, आप भेदभाव कर ही नहीं सकते यहाँ पे। एक एटम को आपने उस किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे को भी उसे करना पड़ेगा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 1.5 by 2 it becomes 3, and when you multiply the other number, right, 1 by 2 it becomes 2। तो इस केस में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आयरन और ऑक्सीजन एटम्स की निकल कर आई 2:3। और आपको पता है कि इसी चीज को आप एम्पिरिकल फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको क्या बताता था? द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन ए कंपाउंड, राइट। तो इस केस में इस कंपाउंड में जो भी आयरन का ऑक्साइड है, इसमें आयरन और ऑक्सीजन की जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो आयरन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 3, तो 2:3। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा? Fe2O3। So Fe2O3 will be the empirical formula of this compound। अच्छे से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, and then let's move to the next question। So a compound contains 4.07% hydrogen, okay, 24.27% carbon, and remaining amount as chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? स्टेप वही चलेगा, पहले की तरह वो टेबल बनाएंगे। इस बार आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है H, कार्बन है C एंड क्लोरीन है Cl। तो सीरियल नंबर 1 2 3 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, उनके सिंबल्स जस्ट पुट देम हियर। हाइड्रोजन इज H, कार्बन इज C एंड क्लोरीन इज Cl। यहाँ एटॉमिक मास ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको अपनी तरफ से इसमें डालना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5। ये वो वैल्यूज़ हैं। यदि आपको कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइडेड नहीं है तो आपको आप ये वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इफ दे प्रोवाइड सम स्पेसिफिक वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को वो कहेंगे नहीं 1.008 है या कार्बन इज 12.01 है, इन दैट केस इफ यू आर सप्लाइड विद एनी वैल्यूज देन यू हैव टू यूज देम हियर। इन दैट केस योर कैलकुलेशंस विल बी ट्रिकियर। देन परसेंटेज बाय मास। अब ये जो इसमें परसेंटेज कंपोजिशन आपको देंगे वो वैल्यूज आपको यहाँ पे लिख देनी है। हाइड्रोजन कितना है? 4.07%। इसका मतलब ये है कि यदि आप 100 ग्राम ये कंपाउंड लेंगे तो उसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगा 4.07%, कार्बन मिलेगा उसमें आपको 24.27% एंड द रिमेनिंग अमाउंट एज क्लोरीन। अब रिमेनिंग अमाउंट कैसे पता चले? क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होगी और 2 एलिमेंट्स की परसेंटेज आपको ऑलरेडी पता है 4.07 एंड 24.27। तो तीसरे की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 100 में से इन दोनों का सम माइनस कर दो। सो टोटल परसेंटेज इज 100, सो 100 माइनस द सम ऑफ
परसेंटेज इज प्रोवाइडेड फॉर द अदर टू एलिमेंट्स. सो 100 में से आपने 4.07 प्लस 24.27 माइनस किया, सो यू गेट 71.66. परसेंटेज कंपोजिशन से अब सीधे सीधे आपको पता चलता है कि 100 ग्राम यदि आप इस कंपाउंड का लेंगे तो उसमें करीब करीब 4 ग्राम 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 24.27 उसमें कार्बन है एंड 71.66 ग्राम उसमें क्लोरीन है. अब एटॉमिक मास भी आपको इनका पता है, इनका गिवन वेट भी आपको, मास भी आपको पता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, यू कैन इजीली फाइंड दैट आउट. सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे हम, गिवन वेट बाय एटॉमिक मास एलिमेंट्स के केस में. सो गिवन वेट परसेंटेज वाले कॉलम से, एटॉमिक मास आपने इधर थर्ड कॉलम में लिख रखे हैं, तो फोर्थ कॉलम की वैल्यू को आप थर्ड कॉलम की वैल्यू से डिवाइड करते चले. सो 4.07 बाई 1 से डिवाइड करो तो सेम ही नंबर, यू गेट द सेम नंबर 4.07. फॉर हाइड्रोजन, फॉर कार्बन गिवन मास इज 24.27, डिवाइड दैट बाय कार्बन एटॉमिक मास 12, यू गेट 2.02. और क्लोरीन के केस में गिवन मास इज 71.66, डिवाइड दैट बाय एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 एंड यू गेट 2.018, ऑलमोस्ट 2.02 ही है, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ठीक है जी. अब इसमें सिंपलेस्ट रेशो निकालनी है, पहले सिंपलेस्ट रेशो और फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो. सो सिंपलेस्ट रेशो इन दिस केस कैसे निकालते थे हम कि प्रीवियस स्टेप में जो भी स्मॉलेस्ट नंबर था, 3 है, 3 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, ये 2.02, ये 2.01 टीवी राउंड ऑफ करके 2.02 ही बन जाएगा. सो इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है. सो वी डिवाइड ऑल ऑफ दीज 3 वैल्यूज बाय द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 2.02. सो 4.07 को 2.02 से डिवाइड किया 2, 2.02 को 2.02 से डिवाइड किया 1, एंड ऐसे ही नीचे भी 2.02 को 2.02 से डिवाइड किया, यू गेट 1. सो सिंपलेस्ट रेशियो इज 2:1:1. Interestingly in this case, this simplest ratio is also a whole number, इसमें कोई फ्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं यहाँ पर. सो सिंपलेस्ट रेशियो और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इस केस में सेम ही है. तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला में यहाँ पे कार्बन के हैं 1 एटम, हाइड्रोजन के हैं 2 एटम और क्लोरीन का है 1 एटम. तो इसको यदि आप लिखें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CH2Cl. कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा, क्यों, क्योंकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स और क्लोरीन का यहाँ पे आपके पास है 1 एटम. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको पता चल गया. आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं. कैसे, कार्बन का 1 एटम है तो 1 × 12, हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 × 1, क्लोरीन का 1 ही एटम है 35.5, सो दैट गिव्स यू 49.5 ग्राम्स पर मोल. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया. मोलर मास ही आपको प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चंस में, या तो सीधे सीधे आपको लिख देंगे कितना है, और यदि कोई गैसियस कंपाउंड है तो उसका वो वेपर डेंसिटी दे सकते हैं, और वेपर डेंसिटी के केस में आप उसका भी मोलर मास आप निकाल सकते हैं. सो मोलिकुलर फॉर्मूला मास गिवन इज 98.96 ग्राम्स पर मोल. अब हमने एक रेशो पढ़ी थी इन दोनों की, राइट. एक नंबर हमने पढ़ा था स्मॉल n इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. इन दिस केस दिस इज 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5 एंड दैट इज 2. तो इन दोनों फॉर्मूला मासेस की मोलिकुलर फॉर्मूला मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड किया तो रेशो इज 2. ये चीज़ यदि आपको पता चल जाए, यदि आपको n पता चल जाए और आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता हो तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेशन इज इजी. मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड ये जो भी आपको अभी रेशो मिली थी उससे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दें. तो एम्पिरिकल में कार्बन का कितना था 1 एटम, तो मोलिकुलर में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई दैट बाय 2 तो C2. एम्पिरिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन कितने थे 2 एटम्स, तो मोलिकुलर में कितने आ जाएंगे, मल्टीप्लाई दैट बाय 2 तो H4, और क्लोरीन 1 था, मल्टीप्लाई दैट बाय 2 Cl2. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में जो भी आपको नंबर ऑफ एटम्स दिखते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, उसको इस रेशियो वाले नंबर n से मल्टीप्लाई कर दें आप, यू विल गेट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. देखें एक बार इसको अच्छे से समझें एंड लेट इट सिंक इनटू योर माइंड. Okay, so let's have one more question, and that is a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Okay, carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram of carbon dioxide,
0.690 gram of water and no other products. A volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate the empirical formula, molar mass of the gas and molecular formula. 3 चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी गई हैं और इसमें पीछे पड़े वाले बहुत सारे क्वेश्चंस यूज हो जाएंगे। तो एलिमेंट्स यहाँ पर 2 ही हैं। वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो हमने जैसा पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, एलिमेंट आपके पास है कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास आप जानते हैं होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप जानते हैं होता है 1। लेकिन इस बार इसने हमें परसेंटेज नहीं दे रखी। पिछले क्वेश्चंस में काम आपका बहुत आसान बना रखा था, आपको सीधे सीधे बता रखा था कि इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट हाइड्रोजन, इतने परसेंट क्लोरीन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस केस में ये वैल्यू आपको नहीं पता। तो अगेन टू फाइंड दिस आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आपने उस कंपाउंड को बर्न किया है ऑक्सीजन में तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। तो इस 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होगा? रिएक्शन जब आप कार्बन को जलाते हैं तो आपको पता है कि C+O2 गिव्स यू CO2 और कार्बन होता है यहाँ पे 12 ग्राम, ऑक्सीजन यहाँ पर होती है 32 ग्राम, 6 टाइम्स 2, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है इसका जो मास आ जाएगा 12 + 32 दैट विल बी 44 ग्राम। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन है 12 ग्राम। यदि आपके पास 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन है 12/44 ग्राम। और यदि आपके पास 3.38 यदि आपके पास 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें आपको मिलेगा 12/44 × 3.38 ग्राम कार्बन। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे सो यू विल गेट समथिंग लाइक 0.9218 ग्राम कार्बन। तो ये आपको पता चला कि कार्बन ओरिजिनली कितना था उस कंपाउंड में। सिमिलरली ऐसे ही हाइड्रोजन का अमाउंट देखते हैं। तो हाइड्रोजन को जब आप बर्न करते हैं राइट ऑक्सीजन में तो देन यू गेट वाटर एंड यू नो व्हाट द फॉर्मूला इज। सो यू नो सो सिमिलरली आपके पास हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन जब बर्न करेंगे तो बनेगा वाटर। वाटर का मोलिकुलर मास हो गया कितना यहाँ पे, दैट इज 18 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल हैव 1 ग्राम ऑफ वाटर विल हैव 2/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एंड हाउ मच वाटर डिड यू गेट? 0.690 ग्राम ऑफ वाटर that will have 2/18 into 0.690 gram of hydrogen. So that will be, if you simplify this, you will get something 0.0767 ग्राम हाइड्रोजन। अब अपने को कार्बन भी पता चल गया, अपने को हाइड्रोजन भी पता चल गया। थोड़ा सा फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार इन्होंने सीधे सीधे आपको परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दी, आपको एंड प्रोडक्ट्स दिए कि एक वेल्डिंग गैस में कार्बन और हाइड्रोजन थे, उनको आप बर्न करते उसके थोड़े से सैंपल को ऑक्सीजन में तो आपको 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो अब आपने रिवर्स इंजीनियरिंग की इसकी, आपको पता चला कि ओके 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें कितना कार्बन रहा होगा, और उसके लिए आप मोलिकुलर मास और यूनिटरी मेथड का यूज़ कर सकते हैं कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, you know that C+O2 gives you CO2, so CO2's molecular mass is 44 ग्राम। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यदि आपके पास है तो उसमें कार्बन है 12 ग्राम। यूजिंग यूनिटरी मेथड 1 ग्राम में होगा 12/44,
एंड 3.38 ग्राम में कार्बन होगा 0.9218 ग्राम। सेम आपने यही कंसेप्ट आपने वाटर के लिए लगाया कि वाटर का मोलिकुलर मास इज 18 ग्राम। तो 18 ग्राम 18 ग्राम वाटर में आपको मिलता है 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम वाटर में आपको मिलता है 2/18 ग्राम हाइड्रोजन। और कितना वाटर आपको इस रिएक्शन का मिला 0.690 ग्राम। तो इसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगा 2/18 इंटू 0.690, दैट इज 0.0767 ग्राम। ओके जी, सो फार सो गुड। अब इसको थोड़ा सा और आगे चलाते हैं। अपने को पता है कि हाइड्रोजन का भी मास पता चल गया और कार्बन का भी मास पता चल गया। तो कंपाउंड का सैंपल का इनिशियली मास कितना रहा, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें थी, इट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, इट्स मेंशन्ड हियर, इट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कंपाउंड का मास कितना रहा होगा, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। तो आप क्या करेंगे, आप इसको 0.9218 ग्राम को और इस 0.0766 ग्राम को 67 ग्राम को ऐड कर देंगे। सो व्हेन यू ऐड these two numbers, you will guess the mass of the compound as 0.9985. This is total mass of the compound. ओके अब इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन आपको निकालनी है, बिल्कुल जो हमने शुरुआती क्वेश्चंस किए थे वैसे ही। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी mass of carbon, that will be 0.9218 divided by total mass of the compound 0.9985 multiplied by 100. So when you solve it, you get 92.32% carbon. एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो या तो आप 100 में से इसको माइनस कर दें, या आपके पास फालतू समय आपको कैलकुलेशंस करनी ही है। तो यू नो मास ऑफ हाइड्रोजन 0.0767 बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 0.9985 इंटू 100, और इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक 7.68%। तो इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चंस में फ़र्क क्या है कि वो आपको पहले बताते थे कि एक कंपाउंड कंटेन्स दिस % ऑफ कार्बन, दिस % ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस % ऑफ ऑक्सीजन और क्लोरीन और वट एवर अदर एलिमेंट इज। यहाँ ये काम आपको खुद करना पड़ा, परसेंटेज कंपोजिशन आपको खुद निकालनी पड़ी। तो जो शुरुआत की जो लाइन्स हैं, ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स दिस एंड अदर प्रोडक्ट्स, यहाँ तक इतने जो फर्स्ट 2 लाइन्स ऑलमोस्ट हैं, यहाँ से आपने इस कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन निकाली। सो कार्बन इज 92.32% एंड हाइड्रोजन इज 7.68%. So using this we can now move to the next step, जहाँ पर हम वो टेबल बनाते थे। तो एलिमेंट हमारे पास था कार्बन और हाइड्रोजन। एटॉमिक मास कार्बन का 12 यूनिट्स, हाइड्रोजन का 1, परसेंटेज बाय वेट और बाय मास। केमिस्ट्री में क्वाइट ऑफ्टन हम वेट मास इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, वी डोंट गो इनटू दोज टेक्निकल डिटेल्स लाइक फिजिक्स। एंड सो परसेंटेज के हिसाब से जो भी हमने निकाला था मास कार्बन की, दैट वाज 92.32 ग्राम्स, और परसेंटेज और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज था 7.68। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, गिवन वेट बाय एटॉमिक मास। सो इन दिस केस 92.32 डिवाइड दैट बाय 12, और हाइड्रोजन के केस में 7.68 डिवाइड दैट बाय 1। तो ये तो इतना ही आ जाएगा 7.68, और कार्बन को 92.32 को व्हेन यू डिवाइडेड बाय 12 यू गेट 7.69। ओके जी, फिर हम क्या निकालते थे, फिर हम इनके निकालते थे रेशो। रेशो के लिए आप क्या करोगे, छोटे नंबर से डिवाइड कर दोगे, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो व्हेन यू डिवाइड both of these numbers by 7.68, so you will get
7.68 by 7.68, I mean just I'm approximating it 1, and this will also be 1, and these are whole numbers. सो ये जो सिंपलेस्ट रेशो आपको मिली है यही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी आ गई, फ्रैक्शंस यहाँ पर नहीं आए। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पर इसका निकल के आ गया, एक कार्बन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, तो C1H1 और जस्ट CH, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आ जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, दैट इज 13 ग्राम्स पर मोल। So calculate the empirical formula. This solves your first part. Empirical formula is CH. Second part, molar mass of the gas. अब यहाँ पर आपको provided है a volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to be 11.6 gram. यदि आपको याद हो मोल कंसेप्ट के शुरुआती लेक्चर्स, तो वहाँ पर हमारी एक बात हुई थी कि किसी भी गैस का एक मोल STP पर 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, राइट। तो इसका मतलब अब आप उस पुराने जन्म की एक याद को यूज़ करें, और यहाँ है कि 10 लीटर का जो मास है दैट इज़ 11.6 ग्राम, तो 1 लीटर का होगा 11.6 बाय 10 ग्राम, एंड 22.7 लीटर का मास होगा 11.6 बाय 10 इंटू 22.7 ग्राम। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो दिस इज अराउंड 26.3 ग्राम्स पर मोल। तो यूनिटरी मेथड यूज़ किया है, 10 लीटर का मास 11.6 ग्राम गिवन है। आपको पता है कि STP पे किसी भी गैसियस सब्सटेंस का 1 मोल 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो 10 लीटर का मास 11.6 ग्राम है, तो 1 का होगा 11.6 बाय 10 ग्राम, एंड 22.7 लीटर का हो जाएगा 11.6 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 22.7, एंड दैट गिव्स यू 26.3 ग्राम्स पर मोल। So this is molar mass of the gas. This solves your second part. Now third is molecular formula. अब यदि आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास भी पता है, मोलिकुलर फार्मूला मास भी आपको पता है, तो आप जानते थे हमारे पास एक रेशो होती थी n होती थी आपकी मोलिकुलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। इन दिस केस 26.3 by 13, that is roughly 2, and molecular formula आपको पढ़ता था कितना होता था, empirical formula times n। तो empirical formula was your CH, रेशियो n यहाँ से आपको मिली है 2, तो molecular formula will be C2H2। So 3 स्टेप्स में हमने इसको किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहा, क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज कंपोजिशन हमें फाइंड आउट करनी पड़ी। सेकंड, इसमें मोलिकुलर फार्मूला मास जो है या मोलर मास जो है वो डायरेक्ट गिवन नहीं था, वो भी आपको मोल कंसेप्ट का यूज़ करके निकालना पड़ा। एंड वंस यू हैड दिस 2-3 थिंग्स, द मोलिकुलर फार्मूला मास, द एम्पिरिकल फार्मूला, इट वाज देन easy, a cakewalk just to find the molecular formula, because it is just empirical formula times n. So this is all for this lecture, and in the next one we will cover mole concept in solutions. We will concept the we will discuss the topics of molarity, and perhaps normality too. Let's see.